Hello students, in this video I will discuss that how we can calculate the equivalent weight of the element or compound in a redox reaction. अब बेटा देखो, इस कंसेप्ट में हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि जैसे अगर हमने कहा कि हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं ए प्लस बी फॉर्मिंग एम प्लस एन. These are the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. So, these are the stoichiometric coefficients in a balanced redox reaction. Over here, the milli equivalents of A will be equal to milli equivalents of B is equal to milli equivalents of N is equal to milli equivalents of N. मीन्स इन सबके मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे. अगर हम एक जनरल कंपाउंड कंसीडर करते हैं, एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हो जाता है बेटा. सेकेंड पॉइंट होता है कि अगर हम एक जनरल कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं, सपोज MXNY, देन इन अ कंपाउंड द मिली इक्विवेलेंट ऑफ MXNY is equal to milli equivalents of M is equal to milli equivalents of N. The third important point is equivalent weight of a compound is equal to the equivalent weight in the oxidation reaction plus equivalent weight in the reduction reaction. Means M divided by N1 plus M divided by N2, where N1 and N2 are the number of electron changes in the oxidation and reduction reactions respectively. कि एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ इंडिविजुअली, N1 और N2 उसको रिप्रेजेंट करता है. और इस N1 और N2 से हम वैलेंसी फैक्टर भी निकाल सकते हैं, विच इज डिनोटेड बाय NF और VF, जैसे भी आपको इजी लगे. सो द वैलेंसी फैक्टर और द N फैक्टर इज इक्वल टू N1 into N2 डिवाइड N1 plus N2. Now the next another important point you have to remember, we know that the equivalent is equal to the given weight upon the equivalent weight. और equivalent weight हमारा किसके बराबर होता है? It is equal to the molecular mass divided by N factor. अब देखो बेटा, इस equivalent weight को यहाँ पे हमने अगर पुट करा तो ये बन जाएगा weight upon molar mass divided by N factor, which is equal to weight divided by the molecular mass multiplied by N factor, and this is nothing but the number of moles is into N factor. तो अब आपके पास जब हमने लिखा कि एक इक्विवेलेंट दूसरे इक्विवेलेंट के बराबर होता है रिएक्शन में, तो क्या हम ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लिख सकते? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन मॉलिक स्पीशीज मल्टीप्लाई बाय द N फैक्टर ऑफ द वन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अदर मल्टीप्लाइड बाय द N फैक्टर ऑफ द अदर स्पीशीज. सो लाइकवाइज यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स. अनदर कंसेप्ट कम्स ओवर हियर. द normality is equal to equivalent upon volume. This means N into V is equal to E. Since E1 equivalent of 1 is equal to the equivalent of 2, so N1 V1 is equal to N2 V2. Another relationship. The next one is, since we know that normality is equal to the number N factor multiplied by molarity, so just we are putting the N value over in this equation. So NF1 into M1 into V1 is equal to N factor 2 into M2 into V2. So by using these formulas and the concept, we are going to calculate the equivalent weight of the compound in a redox reaction. Now see this example. P4 is converting to PH3 and H2PO2 minus. Over here, you just have to split up the reactions. P4 is converting to PH3. Here
P4 is converting to H2PO2 minus. यहाँ पे बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ होगा 0, यहाँ है -3, ओवर हेयर इट इज़ 0 और इसका निकालोगे ये आता है +1. तो जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन है 0 से -3, जो आपका चेंज इन इलेक्ट्रॉन है डेट इज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन. लेकिन ये एक फॉस्फोरस एटम के लिए है. हाउ मेनी फॉस्फोरस एटम्स आर देयर? 4. So the total change will be of 12 electrons. Over here, it is changing from 0 to +1. So the change is of 1 electron. How many atoms of phosphorus? 4. So the change is of 4 electrons. Now we use the formula n factor is equal to n1 multiplied by n2 divided by n1 plus n2. यहाँ पे बेटा n1 कितना है? 12 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 डेट इज 48 by 16 and you cancel out, it comes out to be 3. So the equivalent weight of phosphorus P4 in this equation is equal to the molar mass of phosphorus divided by the n factor, that is equal to 31 into 4. 31 is for the atomic mass for phosphorus, multiplied by 4 divided by what is the n factor, that is 3. This is the total n factor change in this reaction and the answer come out to be 41.33. Like this you can calculate the equivalent weight. See some more examples. Now see this question. For the reaction 3 times Br2 plus 6OH converting to Br minus and BrO3 minus. तो अब यहाँ पे बेटा आप इक्वेशन देख रहे हो तो हमें नज़र आ रहा है कि Br2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Br माइनस में and Br2 is converting to BrO3 minus. See the change in the oxidation number. Over here it is 0, here -1. 0 and here it is +5. Now from 0 to -1 the change is in of 1 electron. How many atoms of bromine are there? 2. So the total change is of 2 electrons. See over here the change is of 5 electrons for 1 bromine and for 2 it is 10 electrons. So it is saying the equivalent weight of Br2. So by using the formula we can calculate the n factor. So n factor is equal to n1 into n2 divided by n1 plus n2. Over here it is 2 into 10 upon 2 plus 10, that is equal to 20 by 12, that gives you 5 by 3. And you can calculate the equivalent weight of bromine is equal to the molar mass of bromine, which is equal to the, or you can write the molar mass divided by the n factor, that is equal to molar mass is 80. And how many bromines are there? 2 bromines are there, so it is multiplied by 2 divided by 5 by 3. You solve it out, it comes out to be 80 into 2 into 3 divided by 5. You solve it out, it comes out to be 96. Likewise you can solve, or the other formula directly we have written, that is the equivalent weight is equal to the molar weight upon the n factor 1 plus the molar weight upon the n factor 2. और इस केस में क्या है? मोलर वेट अपॉन n factor 2 प्लस मोलिकुलर वेट अपॉन 10 और 80 by 2 plus 80 by 10. Likewise also you can solve this, otherwise you can solve this. This is the answer. See the another problem. In the given reaction the equivalent weight of Cu2s is. अब बेटा अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स का निकालना है तो देखो कैसे करते हैं. Cu2s is converting to Cu2 plus, here also Cu2s is converting to SO2. अब यहाँ पे ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे Cu2 कन्वर्ट कर रहा है. अब Cu2 किस स्टेट में है? +1 स्टेट में है, कन्वर्ट कर रहा है Cu2 प्लस में, और यहाँ पे S2 माइनस कन्वर्ट कर रहा है SO2 में.
जब भी हमें इस तरीके से कंपाउंड दिया होता है तो हमें दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग निकालना होगा और फिर उनका n फैक्टर सम अप करना होगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट. अब आप इस रिएक्शन में देखिए बेटा, +1 से +2 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है. हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर आर देयर? 2 एटम्स. सो टोटल चेंज इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 2- है, यहाँ पे आप निकालोगे इट कम्स आउट टू बी +4. तो -2 से +4 द टोटल चेंज इज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. एक एक सल्फर है तो कोई दिक्कत नहीं. सो द टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, n फैक्टर विल बी 2 + 6 means 8. So the equivalent weight of Cu2s is m/8. This is your answer. So it will be your m/8. See another problem? अब बेटा देखो, ये इक्वेशन दी हुई है और आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S3. अब आप इस इक्वेशन में देखो बेटा, AS2S3 जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? AS2S3 जो है वो ASO4 में कन्वर्ट हो रहा है ना. तो ये हो सकता है ASO4 3 है, सो इट विल बी 3-. सिमिलरली AS2S3 इज कन्वर्टिंग टू, सल्फर कहाँ पे आ रहा है? Na2SO4 में, मीन्स SO4 2- में. अब यहाँ पे सिर्फ हमें किसकी निकालना है? AS का निकालना है. सल्फर को हटा देंगे तो ये हो जाएगा AS2 3+ इज कन्वर्टिंग टू ASO4 3- और यहाँ पे बेटा S3 2- इज कन्वर्टिंग टू SO4 2-. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ से आप देखो बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चेंज इज टेकिंग प्लेस. यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालेंगे आप. Here it is coming out to be +5. तो कितना चेंज हुआ? +3 से +5 में जा रहा है बेटा. So the change is of 2 electrons. And how many atoms are there? 2 atoms are there. So the change is of 4 electrons. यहाँ पे देखिए बेटा, -2 से आपका आ रहा है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो द चेंज इज ऑफ -2 से +6 8 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 3 एटम्स आर देयर. सो 24. सो द n फैक्टर इज इक्वल टू 4 + 24 means 28. Now the equivalent weight of AS2S3 is m/28. So this is your answer. Similarly, you can solve for any of the problems. Now I am writing a few things to remember. Now we will calculate the equivalent weight of the common oxidizing or reducing agents used. The first one is the potassium permanganate, KMnO4. The molar mass of potassium is 39 while that of manganese is 55, oxygen is 16. अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसको हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल या एल्केलाइन मीडियम में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. जब हम इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं तो ये अलग अलग तरीके से एक्ट करता है और इसका इक्विवेलेंट वेट भी अलग होता है. यू सी ओवर हियर द फर्स्ट वन, व्हेन इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में ये किसकी तरह यूज़ कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. अब इसमें क्या होता है बेटा कि MnO4 माइनस गेट्स कन्वर्टेड टू Mn2+. यहाँ पे आप इसका ऑक्सीडेशन चेंज देखोगे. सो इट इज फ्रॉम +7 to +2. सो द चेंज इज ऑफ 5 electrons. When the change is of 5 electrons, so the molecular mass divided by 5 will be its equivalent weight. तो equivalent weight क्या आ जाएगा इसका?
मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 5. मॉलिक्यूलर मास आप इससे कैलकुलेट करोगे, इट कम्स आउट टू बी 39. कैलकुलेट करोगे 39 प्लस 55 प्लस 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 डेट इज इक्वल टू 158 डिवाइडेड बाई 5 कम्स आउट टू बी 31.6 ग्राम्स. अब इसी को बेटा अगर हम बेसिक मीडियम में यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4 माइनस से MnO4 2 माइनस में. Now you see over here the change in the oxidation state is of +7 to +6. Only the change is of 1 electron. कितना चेंज हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का. So the equivalent weight will be equal to m by 1, that is 158 by 1, or you can simply say 158 grams. When it is used in बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, मतलब अगर हम इसको किस में यूज कर रहे हैं? न्यूट्रल मीडियम में. यहाँ हमने यूज करा था स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग बेसिक. अगर न्यूट्रल मीडियम में हम यूज करते हैं देन MnO4 माइनस गेट्स कन्वर्टेड टू MnO2. नाउ you see here it is in +7 oxidation state, here it comes out to be +4 oxidation state. The change is of 3 electrons. So the equivalent weight will be m by 3, 158 by 3, that comes out to be 52.66 grams. तो बेटा इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट का, कौन से मीडियम में वो यूज कर रहा है. दिस इज द बेसिक थिंग. यू कैन लर्न इट ओवर बाय डूइंग द प्रैक्टिस कि एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है, बेसिक में 1 इलेक्ट्रॉन का, डाइल्यूट में न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है. तो इसी वजह से जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इट एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम. ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है एज अ रिएजेंट. Similarly, you see the another example. Other example is of sodium thiosulfate, Na2S2O3 acts as a reducing agent. ये जो reducing agent होता है बेटा, अब देखो सोडियम का मोलिकुलर मास होता है 23, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन है 16. तो आप इससे अगर Na2S2O3 का मोलिकुलर वेट निकालोगे तो मोलिकुलर वेट कम्स आउट टू बी 2 into 23 plus 2 into 32 plus 3 into 16, that comes out to be 158. अब ये अलग अलग तरीके से होता है बेटा. द फर्स्ट वन इन एसिडिक मीडियम. अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं देन S2O3 माइनस गेट्स कन्वर्टेड टू S4O6 2 माइनस. बैलेंस करेंगे, दिस इज द चेंज. तो अब आप इसका अगर हम चेंज निकालते हैं डेट कम्स आउट टू बी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी +2.5. तो चेंज जो है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन का है. हाउ मेनी एटम्स आर डिफरेंस इज देयर? 2. सो इट इज 1 इलेक्ट्रॉन चेंज. सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, डेट इज 158 by 1, 158 grams. Similarly, if you see in basic medium, it is S2O3 2 minus gets converted to 2SO4 2 minus. Over here it is in +2 oxidation state, and over here it comes out to be in +6 oxidation state. So the change is of 4 electrons. How many atoms are there? 2 atom difference. यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है. So 8 electrons. So the equivalent weight will be equal to 158 divided by 8. That comes out to be 19.75 grams. इसी तरीके से बेटा अगर इसका निकालते हैं हम इन aqueous medium, और यू कैन सिंपली से न्यूट्रल मीडियम. न्यूट्रल मीडियम में ये
H2O3 2- जो है वो HSO4 माइनस में कन्वर्ट होता है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है डेट इज फ्रॉम +2 टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर का कितना आ रहा है +6। सो अगेन द चेंज इज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स into 2 8 electrons total change. So the equivalent weight will be equal to 158 divided by 8, again 19.75 grams. यहाँ पे बेटा हमने इसको सिर्फ बैलेंस कर दिया। अगर आप इसको बैलेंस करके नहीं भी लिखोगे तो भी हमारा कंसेप्ट तो अपना यही रहेगा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। बैलेंसिंग तो हमने सिर्फ आपको दिखा दी थी, ये इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ये आपका सिंपल आता है। तो इस तरीके से हम कुछ भी निकाल लेते हैं। नाउ सी अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.0 m KMnO4 solution would be required to exactly titrate 25 ml of 0.2 m FeNO3 ferric nitrate solution in acidic medium? अब इसमें बेटा देखो एसिडिक मीडियम यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि KMnO4 जो होता है वो एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज देता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज देता है, यानी कि n फैक्टर इसका कितना है 5। FeNO3 मीन्स Fe+2 जो है ये कन्वर्ट होगा Fe+3 में। इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन का, सो इट विल बी 1। अब बेटा हमें देखो मोलैरिटी गिवन है, n फैक्टर गिवन है, हमें दोनों के इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मींस इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ FeNO3 होल ट्वाइस। ये जो इक्विवेलेंट है इसका हमने रिलेशनशिप आपको निकाला था, दैट इज n फैक्टर मल्टीप्लाई बाई द मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम is equal to n factor for the other one multiply by molarity into volume 2. Now you can see KMnO4 के मिलीलीटर्स आपसे पूछ रहा है, बाकी सबके दिए हुए हैं। So n factor over here for KMnO4 is 5 multiply by 0.02 वॉल्यूम निकालना है। आयरन के केस में n फैक्टर 1 है, मोलैरिटी इज गिवन एज 0.2, वॉल्यूम दिया हुआ है 25 ml। सॉल्व करेंगे बेटा। सो V1 comes out to be 0.2 into 25 divided by 5 into 0.02. When you solve it out, it comes out to be 50 milliliter. Simple one. You can solve it. तो इस तरीके से बेटा हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Hope you have understood this concept. Keep practicing. Thank you.